Welcome everyone. In today's video, we will take the topic precautions to be taken while teaching English language. So, before we start the content, we have to know that why we discuss precautions, especially for English language, means there are many subjects social science, maths. So, why we focus on English language and what are the precautions to be taken. So English language is taken because English is a second language, and language teaching, whether it's Hindi or English, it's different from other types of teaching. So there is a big difference between the teaching of English and teaching of SST. सो लैंग्वेज पढ़ाते समय हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो भाषा है, इसमें हम कंटेंट की गुणवत्ता पे ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ हम उसके स्पेलिंग्स मिस्टेक्स को भी ध्यान रखते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी कंसर्न करते हैं. दैट्स वाई द टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट that we have to take the precautions why as a teacher while we are teaching the English language. So let's start. So the first precaution is cultural sensitivity. While teaching English, we have to be thoughtful or mindful of cultural differences and sensitivities. Means we have a inclusive classroom where we have different kind of students. Concerning different type of cultures, so as a teacher we have to be thoughtful towards all the culture, and we have to consider all the we have to give equal importance to all the different types of cultures. Second one is avoid stereotypes. Fixed mindset should be followed by the teachers, and there should be no prejudice, there should be no before thoughts, and promote cultural understanding and respect. So between the students you have to promote and support each and every culture, give respect to each and every culture, and provide a good understanding towards the students, so that they can easily understand the content as well as they can go through the social norms with ease and comfort. Second one is the clear communication. While teaching in a language classroom, especially in the English, communication or the pronunciation should be clear, because it's the main or the pillar of the teaching of any kind of language. So clear and concise language in a with a explained concept, with a clear cut concepts, is the need of such kind of classes. And if your learners, your students are beginners, you should avoid the jargoning, or and apart from jargoning you should introduce a critical understanding or deep learning to of the content towards the students, so that they can go through their own, they can create their own thoughts, they can judge what is wrong, what is right. So for this they have to avoid the jargoning and understand the content properly. And third one is patience and encouragement. So as a teacher you should provide encouragement and positive reinforcement to the learners. When, for example, if any student given an answer to your question, so you should motivate the student properly. Patience is required in this case. You as a teacher never rush or ignore that student who given the answer. So take it positively, celebrate students efforts, and provide reinforcement. Reinforcement is very essential for the motivation of the students. So these are the 3 points we concerned in this slide: cultural sensitivity, clear communication, and third one is patience and encouragement. नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस. हमें हर एक लर्नर की लर्निंग स्टाइल, उसकी पेस, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए एक उसको प्रॉपर कंटेंट को समझाने के लिए इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए. एंड अलग अलग टीचिंग अप्रोचेस को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए. तो क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स की अलग अलग, सबकी नीड्स अलग अलग होंगी. दे हैव सम लर्न वेरी फास्ट, सम आर लर्न थ्रू
by seeing or some learn through hearing. So सबका डिफरेंट प्रोसीजर होता है, पेस भी सबका अलग अलग होता है. सो थ्रू दिस वी हैव टू एज अ टीचर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस केस. And then fifth point is authentic materials. Authentic materials means ऐसे न्यूज़पेपर्स, वीडियोस, आर्टिकल्स लेने चाहिए जिसमें फैक्ट्स ठीक हों, जिनमें डाटा जो दिया गया है, आंकड़े जो प्रोवाइड किए गए हैं वो प्रॉपर हों, उनमें कोई प्रिजुडाइज ना हो, कोई प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए हों टॉपिक को. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टीचर मस्ट एनकरेज द पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ लर्नर्स. क्लास में जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स का कोलैबोरेशन होगा, वो लर्निंग उतनी अच्छी होगी. सो हमें लर्निंग के जो मटेरियल्स हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जितने भी मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं वो सब ऑथेंटिक लेने चाहिए. एंड 6 वन इज़ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड सेल्फ कोरिलेशंस. स्टूडेंट्स को लगातार ऐसा फीडबैक देना चाहिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो, यानी जिसमें नवीनता हो, जो स्टूडेंट्स को प्रमोट करे और वो सेल्फ को करेक्शन करे. सेल्फ करेक्शन इन द सेंस ऑफ द कंटेंट, मतलब स्टूडेंट्स अपने कंटेंट को इतना अच्छा समझ जाए कि वो कहाँ गलती कर रहा है, वो गलती खुद से वो पकड़ सके. सो दिस वन इज़ द 6th पॉइंट. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड सेल्फ करेक्शन should be provided to the students. Next, 7th point is use balanced curriculum. A curriculum which has all language skills means एक बच्चा जो लैंग्वेज पढ़ना भी जाने, उसको रीड करना भी जाने, लिखना भी जाने, राइटिंग भी उसकी हो और स्पीकिंग भी हो और लिसनिंग भी हो. तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, चारों कंपोनेंट, चारों स्किल्स कवर करे, ऐसा करिकुलम हमें, बैलेंस करिकुलम हमें फॉलो करना चाहिए. ये नहीं कि इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सिर्फ उसको रीड ही कर पा रहा है, लिखते समय उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, वो नहीं होना चाहिए. और वो स्पीकिंग में अच्छा नहीं है या फिर, तो चारों स्किल्स उसकी डेवलप होनी चाहिए. और इसमें एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर एम्फसाइज करना नहीं चाहिए. अवॉइड ओवर एम्फसाइजिंग वन स्किल, कि सिर्फ आप अपनी क्लास में प्रैक्टिस स्पीकिंग की करवा रहे हैं, बाकी तीनों स्किल्स आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो यू शुड यूज़ अ बैलेंस कैरिकुलम सो दैट ऑल द स्किल्स, ऑल द 4 लर्निंग स्किल्स आर covered in this curriculum. 8th point is culturally relevant content. ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ऐसा टॉपिक होना चाहिए, टीचिंग मटेरियल ऐसे होने चाहिए जो कि लर्नर्स के इंटरेस्ट पे हों, लर्नर्स के कल्चर के कन्वीनियंट हों, वो कल्चर के साथ चलने वाले हों. जैसे इंडियन कल्चर हमारा अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, तो हम वेस्टर्न की कोई स्टोरी अगर अपने करिकुलम में डाल रहे हैं तो पहले स्टोरी को शुरू करने से पहले वहाँ का कल्चरल बैकग्राउंड वहाँ का सिखाना पड़ेगा बच्चे को, अगर 6th-7th के बच्चे हैं तो. और बड़ी क्लासेस के हैं तो वो दे नो कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर. सो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर मिडिल सेक्शन जो है, 6 to 8 वाला जो सेक्शन है, इनमें ऐसे टॉपिक्स रखने चाहिए जो मोस्टली उस पर्टिकुलर कल्चर से कोऑर्डिनेट करते हुए हों, ताकि उसका रिलेवेंस डे टू डे लाइफ में बच्चा कन्वीनियंटली उतार सके. देन 9th टॉपिक इज़ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़. ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इंटरैक्टिव हों, क्लास में इंटरैक्शन हो, बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, क्वेश्चन आंसर पूछें, टीचर से पूछें. तो उसके लिए एक्टिविटीज़ ऐसी करवानी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन और द गेम्स, सो दैट all the class, whole class involved in a one role play or in a group discussion or in a game, so they interact freely and understand the content properly. Next, 10th point is continuous professional development, and this point is purely for the teachers. Teachers should be updated themselves for language teaching. Continuously they reflect their teaching and purify their strategies so that they can meet the diverse needs of the different students. लगातार अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, अपने व्यावसायिक विकास के लिए टीचर्स को अपनी ही टीचिंग को रिफाइन करते रहना चाहिए, उस पर मेटाकॉग्निशन करते रहना चाहिए, ताकि उनका जो ड्रॉबैक्स हैं या जो उनकी वीकनेस हैं उन पे वो काम करें और अगली बार फिर से बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग दोबारा या
नेक्स्ट टाइम जो भी है अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें ताकि सारे बच्चों की जितनी भी डिफरेंट नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट 11th पॉइंट है ग्रामर एंड वोकेबलरी। ये स्टूडेंट्स के लिए है कि यू शुड एज अ टीचर यू शुड इंट्रोड्यूस ग्रामर और वोकेबलरी ग्रेजुअली टू द टीचर टू द स्टूडेंट्स। कोई भी नया ग्रामर या का रूल है या कोई वोकैब है उसको धीरे धीरे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबली उसके साथ सीखने लर्निंग के प्रोसेस में आ सकें और रीइंफोर्स देम थ्रू द प्रैक्टिसेस एंड एप्लीकेशन। तो और जब वो उसको कर रहे हैं सीखने के दौरान प्रोसेस में हैं उस समय उनको रीइंफोर्स करें, उनको पुनर्बलन दिया जाए, उनको मोटिवेशन दिया जाए ताकि वो अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और उसको अप्लाई कर सकें। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी शुड बी taught gradually and continuous professional development should be there for every teacher. Moving to the next slide. In next point we will see that scaffolding learning. Scaffolding का मीनिंग होता है जब हम किसी को बेस या सपोर्ट प्रदान करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब न्यू बिल्डिंग बनती है तो उसके बाहर की तरफ एक बांस का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है आपस में बांध के, और उसके ऊपर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो उसको चढ़ के उसके ऊपर बिल्डिंग को बनाते हैं। तो वो उसको सपोर्ट मिलता है वहाँ पे, उस पर वो चढ़ जाते हैं और सपोर्ट लेके उससे उसको बनाते हैं। उसी तरह से हमें स्कैफोल्डिंग लर्निंग बच्चों को प्रोवाइड करानी है। उसमें हम उनकी प्रायर जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, उसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ ले जाते हैं, लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स पार्ट से की तरफ ले जाते हैं। तो इजी जो उनको पहले पता है उसी में हम स्कैफोल्डिंग देते हुए और उसी को बेस बनाते हुए धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ से ले जाते हुए सिखाते हैं। तो उससे उनको प्रमोट होता है, सपोर्ट प्रमोट होता है और बच्चों को हेल्प मिलती है एंड दे ईजीली लर्न द कंसेप्ट and grab the component of each component of the concept. So in 11th point we will wrote scaffolding learning, and last point is encouraging practices. Both inside and outside classroom practices should be provided to the students so that they can easily learn each and every aspects of the language. And for improvement, for additional practices, suggestion must be given by the teachers in a positive way so that they come to know in which direction they are going. And if their learning is not going in a proper direction, teachers can promote a good direction and change their direction towards the positivity. That's the last topic of this point. So in the end, we can say that just by taking practices of these precautions, teachers can create a dynamic, inclusive and effective English language learning experiences that support the academic and personal growth of the students. And these efforts not only enhance the language proficiency but also foster a love for learning and culture experiences to the students and improve their language skills also. So these precautions leads to the good experiences beyond the classroom as well as in the classroom. So in the conclusion we must say that language remains the main features of all kind of learning, क्योंकि अगर आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको लैंग्वेज से रूबरू होना पड़ता है, आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो भी आप लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. सो लैंग्वेज इज़ द की कंसेप्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंटेंट और लर्निंग अ थिंग. सो इन होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज. एक्सप्रेसिंग आइडिया लैंग्वेज के थ्रू होगा एंड अपनी मूड्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एटीट्यूड को बताने का काम भी स्टूडेंट्स और टीचर्स लैंग्वेज में ही करेंगे. सो लैंग्वेज इज़ द की कंपोनेंट ऑफ ऑल kind of teaching learning. That's it in the video. We will take another topic in another video. Subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.